Chapter 2. India in the 18th century. For thousands of years, India had witnessed big empires and kingdoms. The medieval period in history began with the Muslim invasion, Turkish conquests under Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori. These invasions gave way to many famous dynasties that ruled in India, such as the Slave dynasty, the Khiljis, the Tughlaqs, the Saids, the Lodhi dynasty and finally the Mughals. In the 16th century, Babur, said to be descendant of Genghis Khan as well as Timur the Lame, invaded India. भारत ने हजारों सालों तक बड़े साम्राज्य और राजवंशों को देखा। मध्यकालीन काल, मेडिवल पीरियड, की शुरुआत मुस्लिम आक्रमणों से हुई, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के तहत तुर्की आक्रमणों से। इन आक्रमणों के बाद भारत में कई प्रसिद्ध राजवंशों का शासन हुआ, जैसे कि दास राजवंश, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, खिलजिस, तुगलक, ट्यूगलक्स, सैयद, सेड्स, लोधी, लोधी राजवंश और अंत में मुगल्स। 16वीं सदी में बाबर, जो गेंगिस खान और तिमूर द लेम का वंशज कहा जाता है, भारत पर आक्रमण करने आया। Fed up with continuous battle with Kabul, he was lured to India by Daulat Khan Lodhi, a disgruntled of Ibrahim Lodhi. Crossing the Khyber Pass, Jahiruddin Muhammad Babur defeated Ibrahim Lodhi in the First Battle of Panipat in 1526. He laid the foundation of the Great Mughal Empire, which lasted for 200 years and rose to its zenith during the reigns of Akbar, Jahangir and Shah Jahan. काबुल के साथ लगातार युद्ध से तंग आकर उसे दौलत खान लोधी, जो इब्राहिम लोधी से नाराज था, ने भारत में ललचाया। खैबर दर्रे, खैबर पास को पार करते हुए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया। इस प्रकार उसने महान मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो 200 वर्षों तक चला और अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा। Disintegration of the Mughal Empire. The Mughal Empire started to decline during the last phase of Aurangzeb's reign. His prolonged absence from the capital was a major reason for the disintegration of the Mughal political structure. While he was busy capturing the Jagris of the Deccan, his Jagirdars in the north were unable to collect their dues from the villages. Many of Aurangzeb's orders were not implemented in his absence because his nobles overlooked them. The local nobles of the regions who experienced economic growth in the 17th century felt increasingly confident of standing on their own. The abundant commissioning of mansabdars made them very strong. मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब के शासन के अंतिम चरण में शुरू हुआ। उसकी राजधानी से लंबी अनुपस्थिति, एब्सेंस, मुगल राजनीतिक संरचना के विघटन का एक प्रमुख कारण थी। जब वह दक्षिण डेक्कन के जागीर्स को कब्जे में लेने में व्यस्त था, तो उत्तर में उसके जागीरदार्स अपने गांवों से शुल्क नहीं वसूल पा रहे थे। औरंगजेब के कई आदेशों को उसकी अनुपस्थिति में लागू नहीं किया गया क्योंकि उसके नोबल्स उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। 17वीं सदी में आर्थिक वृद्धि का अनुभव करने वाले स्थानीय नवाबों को अब खुद पर निर्भर रहने का आत्मविश्वास महसूस होने लगा। बहुत सारे मनसबदारों मैनसैब्डर्स की नियुक्ति ने उन्हें बहुत ताकतवर बना दिया। In the beginning, Aurangzeb introduced many administrative changes and moral reforms. Subsequently, he enforced many religious laws and suppressed many ill practices.
Overall, one can conclude that his policy was a gradual departure from Akbar's policy of tolerance and coexistence. This resulted in the revolts of the Jats, the Satnamis, the Sikhs, the Rajputs etc. शुरुआत में औरंगजेब ने कई प्रशासनिक बदलाव और नैतिक सुधार, मोरल रिफॉर्म्स, पेश किए। इसके बाद उसने कई धार्मिक कानून लागू किए और कई बुरी प्रथाओं को दबाया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उसकी नीति अकबर की सहिष्णुता और सहअस्तित्व, टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस की नीति से धीरे धीरे हट गई। इसका परिणाम जाटों, सतनामियों, सिखों, राजपूतों आदि के विद्रोह, रिवोल्ट्स के रूप में हुआ। Political condition of India. The Mughal Empire, famous for uniting the entire country by means of an efficient administration, reached at peak during the era of the Great Mughals and declined in 1707 with Aurangzeb's death. The first 6 Mughal emperors ruled for almost 200 years, whereas the 58 years following Aurangzeb's death witnessed 8 emperors, 4 of whom were murdered and 1 deposed. मुगल साम्राज्य, जो पूरे देश को एक कुशल प्रशासन के माध्यम से एकजुट करने के लिए प्रसिद्ध था, महान मुगलों के युग के दौरान अपने चरम पर पहुंचा और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ इसका पतन शुरू हुआ। पहले 6 मुगल सम्राट लगभग 200 वर्षों तक शासन करते रहे, जबकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद के 58 वर्षों में 8 सम्राटों ने शासन किया, जिनमें से 4 को मार दिया गया और 1 को अपदस्थ, डिपोस्ट कर दिया गया। This chaotic situation had a disastrous effect on the Mughal Empire. The new rulers lost their credibility and there were many revolts against the administration. The country soon broke up into smaller estates ruled by petty nawabs, feudal overlords who had risen to prominence in the vacuum left by the crumbling imperial edifice. यह अराजक स्थिति, chaotic situation, मुगल साम्राज्य पर विनाशकारी प्रभाव डालने वाली थी। नए शासकों, रूलर्स की विश्वसनीयता खो गई और प्रशासन के खिलाफ कई विद्रोह, रिवोल्ट्स हुए। देश जल्द ही छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जो छोटे नवाबों, पेटी नवाब्स और जागीरदारों, फ्यूडल ओवरलॉर्ड्स द्वारा शासित थे, जिन्होंने साम्राज्य के ढहते हुए ढांचे के खालीपन में अपनी स्थिति को मजबूत किया। The successors of Aurangzeb, known as the later Mughals, were mere puppets in the hands of their nobles. These nobles aligned themselves into many factions on the basis of their separate origins. The result of such factions being formed was that each group with each other for supremacy, while consolidating its own power. औरंगजेब के उत्तराधिकारी, जिन्हें बाद के मुगल, लेटर मुगल्स कहा जाता है, अपने नवाबों के हाथों में कठपुतलियां, पपेट्स बनकर रह गए थे। ये नवाब, नोबल्स, अपनी अलग-अलग उत्पत्ति के आधार पर कई गुटों, फैक्शंस में बंट गए थे। ऐसे गुटों के बनने का परिणाम यह हुआ कि हर समूह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक दूसरे से सुप्रीमेसी, प्रभुत्व के लिए संघर्ष करने लगा, जबकि अपनी अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। Gradually, several provinces seceded from the empire. Chin Kilij Khan founded the state of Hyderabad in the Deccan in 1724. In the east, the Ghana, Murshid, Bengal and Orissa. In the center of the empire, the Ghana of Awadh and Punjab became practically independent. Meanwhile, the Marathas also started their northward expansion, capturing Malwa, Gujarat and Bundelkhand. धीरे-धीरे
कई प्रांतों ने साम्राज्य से अलग होना शुरू कर दिया। चिनकिलिच खान ने 1724 में डेक्कन में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। पूर्व में मुर्शिद बंगाल और उड़ीसा के गवर्नर ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। साम्राज्य के केंद्र में अवध और पंजाब के गवर्नर भी लगभग स्वतंत्र हो गए। इस बीच मराठों ने अपनी उत्तरी विस्तार यात्रा नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन शुरू कर दी और मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को अपने कब्जे में कर लिया। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। Nadir Shah's original name was Nadir Quli. In 1736, after the death of the last Persian Sultan, Nadir became the ruler of Persia and assumed the title Shah. नादिर शाह का असली नाम नादिर कुली था। 1736 में अंतिम फारसी सुल्तान की मृत्यु के बाद नादिर ने पर्शिया का शासक बनने का दावा किया और शाह की उपाधि धारण की। To expand his territory, he conquered Kandahar before shifting his attention to India. He defeated the Mughal army in the Battle of Karnal in February 1739. Muhammad Shah was taken to prison and Delhi came under the control of Nadir Shah. He plundered Delhi's enormous wealth. The Persian troops left Delhi in May 1739 with wealth then worth rupees 70 crores, the fabulous Kohinoor diamond and the priceless peacock throne, which thereafter served as a symbol of Persian might. अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसने कंधार पर कब्जा किया और फिर अपनी नजरें भारत पर डालीं। उसने फरवरी 1739 में करनाल की लड़ाई बैटल ऑफ करनाल में मुगल सेना को हराया। मुहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया और दिल्ली नादिर शाह के नियंत्रण में आ गई। नादिर शाह ने दिल्ली की विशाल दौलत वेल्थ को लूट लिया। मई 1739 में फारसी सैनिक दिल्ली छोड़कर 70 करोड़ रुपए की दौलत, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड और बेशकीमती मोर के सिंहासन पीकॉक थ्रोन के साथ दिल्ली से वापस लौटे, जो बाद में फारसी शक्ति का प्रतीक बन गया। This left the empire open to the threat of invasions from the northwest. In the meantime, the Marathas had emerged as the prominent power in the country. इसने साम्राज्य को उत्तर पश्चिम से आक्रमणों इन्वेशंस का खतरा खोल दिया। इस बीच मराठों ने देश में प्रमुख शक्ति प्रोमिनेंट पावर के रूप में उभरना शुरू कर दिया। द लेटर मुगल्स। बाद के मुगल सम्राट बहादुर शाह आए 1707 से 12, जहांगीर शाह 1712 से 13, फर्रुखसियार 1713 से 19, मुहम्मद शाह 1720 से 48, नहमत शाह 1748 से 54, आलमगीर II 1754 से 59, शाह आलम II 1759 से 1806, अकबर II 1806 से 1837, बहादुर शाह जाफर II 1837 से 57। Expansion and decline of Maratha power. Chhatrapati Shivaji is known as the founder of the Maratha Empire. Under his leadership, the Marathas carved out their own kingdoms in 1646. Before that,
Marathas chieftains were in the service of Bijapur sultans in the western Deccan. Aurangzeb, the last great conqueror of the Mughal period, defeated the Marathas and annexed their territories. छत्रपति शिवाजी को मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर का संस्थापक, फाउंडर माना जाता है। उनके नेतृत्व में मराठों ने 1646 में अपने स्वयं के राज्य स्थापित किए। इससे पहले मराठा सरदार, चीफटेन्स, बीजापुर सुल्तान्स की सेवा में थे, जो पश्चिमी दक्कन, वेस्टर्न डेक्कन में शासन करते थे। औरंगजेब, जो मुगल काल के अंतिम महान सम्राट थे, ने मराठों को हराया और उनके क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। By 1673, Shivaji had controlled the most of western Maharashtra. In 1674, he assumed the title Chhatrapati. He died in 1680, but not before establishing a vast Maratha empire. He had also developed an efficient administration and a powerful army known for its unique brand of strike and retreat warfare, which we today call guerrilla warfare. 1673 तक शिवाजी ने पश्चिमी महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। 1674 में उन्होंने छत्रपति का उपनाम अपनाया। 1680 में उनका निधन हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक विशाल मराठा साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने एक कुशल प्रशासन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और एक शक्तिशाली सेना, पावरफुल आर्मी विकसित की, जो अपनी अद्वितीय छापामार युद्ध नीति, ग्योरिल्ला वॉरफेयर के लिए प्रसिद्ध थी, जिसे आज हम गोरिल्ला युद्ध, स्ट्राइक एंड रिट्रीट वॉरफेयर कहते हैं। However, the Shivaji's death, family conflict and lack of good leadership compelled the Peshwas of the Maratha Empire to take control of the power of the state. The Peshwas ruled from 1712 to 1818. The Third Battle of Panipat was fought between the Marathas and Afghans under Ahmad Shah Abdali. The Marathas lost the war and it greatly weakened the power of the Peshwa. हालांकि शिवाजी के निधन, पारिवारिक संघर्ष, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और अच्छे नेतृत्व की कमी ने मराठा साम्राज्य के पेशवास को राज्य की सत्ता, कंट्रोल ऑफ पावर संभालने के लिए मजबूर किया। पेशवा 1712 से 1818 तक शासन करते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठों और अफगान्स के बीच अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में लड़ी गई थी। मराठों को यह युद्ध हारना पड़ा और इससे पेशवा की शक्ति, पेशवा पावर, काफी कमजोर हो गई। Causes of Maratha failure. The main causes behind the defeat of the Marathas in the Third Battle of Panipat were I. The faulty strategy of war adopted by Marathas, and 2. The lack of solidarity among the Indian rulers. In contrast, Ahmad Shah Abdali received the support of the treacherous Indian rulers and nobles, who were united in their opposition to the Marathas. This battle proved disastrous for the Marathas as they not only suffered huge losses of men and money, their morale also suffered badly. The Maratha defeat at Panipat ultimately led to the disintegration of their once proud empire. पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के मुख्य कारण थे मराठों द्वारा अपनाई गई युद्ध रणनीति, फॉल्टी स्ट्रैटेजी ऑफ वॉर, और 2. भारतीय शासकों,
इंडियन रूलर्स के बीच एकजुटता की कमी, लैक ऑफ सॉलिडारिटी। इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली को भारतीय शासकों और नवाबों, नोबल्स का समर्थन प्राप्त था, जो मराठों के खिलाफ एकजुट थे। यह युद्ध मराठों के लिए विनाशकारी, डिजास्ट्रस साबित हुआ, क्योंकि उन्हें न केवल बड़ी संख्या में जान और धन की हानि, लॉस उठानी पड़ी, बल्कि उनका मनोबल, मोरल भी बुरी तरह से टूट गया। पानीपत में मराठों की हार के बाद उनके वंस प्राउड साम्राज्य का विघटन, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। Soon after the decline of the central authority of Delhi, the provinces of Awadh, Bengal and Mysore also came into existence as a result of revolts of their governors. दिल्ली की केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ दिल्ली के पतन के तुरंत बाद अवध, बंगाल, बंगाल और मैसूर जैसे प्रांत भी अपनी अपनी गवर्नरों के विद्रोह, रिवोल्ट्स के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए। अवध। सादत खान was appointed the governor of Awadh in 1722. He was a capable soldier and able ruler. He was succeeded by his son-in-law Safdarjung, who was efficient administrator. He became the Nawab of Awadh in 1739. Because of his valuable assistance and support, he became close associate of Muhammad Shah, who later made him the governor of Kashmir. During his last years of rule, Safdarjung gained complete control of the administrative machinery of the Mughal Empire. However, court politics prevented him from taking full control, and he was dismissed in 1753. He returned to Awadh and died in 1754. 1722 में सादत खान को अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया था। वह एक सक्षम सैनिक, केपेबल सोल्जर और अच्छे शासक, एबल रूलर थे। उनके बाद उनके दामाद सफदरजंग ने शासन किया, जो एक कुशल प्रशासक, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1739 में वह अवध के नवाब ऑफ अवध बने। मुहम्मद शाह के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण उन्हें कश्मीर का गवर्नर भी नियुक्त किया गया। सफदरजंग ने मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर पूरी तरह से नियंत्रण, कंट्रोल प्राप्त कर लिया था। हालांकि दरबारी राजनीति, कोर्ट पॉलिटिक्स ने उन्हें पूरी तरह से नियंत्रण लेने से रोक दिया और उन्हें 1753 में हटा दिया गया। वह अवध वापस लौटे और 1754 में उनका निधन हो गया। His son, Shujauddaulah, succeeded him. Shujauddaullah's rule witnessed significant political changes. He died in 1775 and was succeeded by his son Asfuddaulah. उनके बाद उनके बेटे शुजाउद्दौला ने सत्ता संभाली। शुजाउद्दौला के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव, पॉलिटिकल चेंजेस हुए। 1775 में उनका निधन हुआ और उन्हें उनके बेटे आसफुद्दौला ने उत्तराधिकारी, सक्सेसर के रूप में ताज पहनाया। Bengal. At Aurangzeb's death, Murshid Quli Khan was in charge of the province of Bengal. In 1717, Emperor Farrukhsiyar made him the governor of Bengal. This was just face-saving device because Murshid Quli Khan behaved as an independent ruler and owed only nominal allegiance to the Mughal emperor. Under him,
the province flourished. He helped and promoted the growth of trade and succeeded in bringing prosperity to the region. औरंगजेब की मृत्यु के समय मुर्शिद कुली खान बंगाल प्रांत के शासक थे। 1717 में सम्राट फर्रुखसियर ने उन्हें बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। हालांकि यह केवल एक दिखावा, फेस सेविंग डिवाइस था, क्योंकि मुर्शिद कुली खान एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करते थे और केवल नाममात्र नॉमिनल की वफादारी मुगल सम्राट के प्रति रखते थे। उनके शासन में बंगाल प्रांत समृद्ध फ्लरिश्ड हुआ। उन्होंने व्यापार ट्रेड को बढ़ावा दिया और क्षेत्र की समृद्धि में सफलता प्राप्त की। After his death 1727, he was succeeded by his son-in-law Shujauddin Muhammad Khan, who improved the administration and restored the state of its finances. But due to his vices, power slipped into the hands of his advisors, Haji Dhamad, Alam Chand and Jagat Seth. Shujauddin died in 1739. His son Sarfaraz Khan became the next ruler, but he also neglected the administration. Finally, the brother of Haji Dhamad, Ali Vardi Khan, the deputy governor of Bengal, captured the seat of Bengal in 1740. Sarfaraz Khan was defeated and killed in the battle. उनकी मृत्यु के बाद 1727 में उनके दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने सत्ता संभाली। शुजाउद्दीन ने प्रशासन में सुधार, इम्प्रूव्ड द एडमिनिस्ट्रेशन किया और राज्य के वित्त फाइनेंसेस की स्थिति को सुधारने में मदद की। लेकिन उनके आचरण वाइसेस के कारण सत्ता उनके सलाहकारों हाजी अहमद, आलम चांद और जगत सेठ के हाथों में चली गई। शुजाउद्दीन की 1739 में मृत्यु हुई और उनके बेटे सरफराज खान ने अगला शासक बनने के बाद प्रशासन की अनदेखी की। अंततः हाजी अहमद के भाई अली वर्दी खान जो बंगाल के उपगवर्नर थे, ने 1740 में बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। सरफराज खान को पराजित डिफीटेड किया गया और युद्ध में मारा गया किल्ड। Ali Vardi Khan was an able administrator. He died in 1756 and was succeeded by his grandson Sirajuddaulah. Sirajuddaulah started suppressing his enemies after coming to the power. He ruled for little over 1 year, and in that period he had to deal with enemies from within the family as well as from outside. Ali Vardi Khan एक सक्षम प्रशासक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने 1756 में मृत्यु के बाद अपने पोते सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी सक्सेसर के रूप में छोड़ा। सिराजुद्दौला ने सत्ता में आने के बाद अपने दुश्मनों को दबाना शुरू किया। वह केवल 1 साल से थोड़ा अधिक समय तक शासन रूल्ड कर पाए और इस दौरान उन्हें परिवार के अंदर और बाहर दोनों प्रकार के दुश्मनों से जूझना पड़ा। हैदराबाद। The independent state of Hyderabad in the Deccan was founded by Chin Kilij Khan, who was made governor of the 6 states of the Deccan by the Emperor Farrukhsiyar. Later he occupied Hyderabad in 1725. He faced his greatest challenge from the Marathas under the leadership of Peshwa Baji Rao I. The Marathas were determined to collect the taxes they called Chauth and Sardeshmukhi from the 6 states of Deccan, but the Nizam, Chin Kilij Khan was popular by this name, refused to pay them.
He tried to divide the Marathas and fought 2 wars with them. दक्कन में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिज खान ने की थी, जिन्हें सम्राट फर्रुखसियार एम्परर फर्रुखसियर ने दक्कन के 6 राज्यों का गवर्नर नियुक्त किया था। बाद में उन्होंने 1725 में हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। उनका सबसे बड़ा चुनौती मराठों से आई, जो पेशवा बाजीराव आय के नेतृत्व में थे। मराठे दक्कन के 6 राज्यों से चौथ और सरदेशमुखी कर इकट्ठा करने के लिए दृढ़ थे, लेकिन निजाम, जो चिनकिलिज खान के नाम से प्रसिद्ध थे, ने इसे भुगतान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मराठों को विभाजित करने की कोशिश की और उनके साथ 2 वॉर्स लड़े। चिनकिलिज खान died in 1748. He was considered to be the most capable ruler of the Deccan. He founded the Asaf Jahi dynasty in Deccan. After his death, confusion prevailed in the region, which was followed by the usual struggle for the throne. By this time, foreign powers like the British and the French were extending their influence ever wider. The interference of the Marathas in the Deccan politics and the rise of Mysore under Hyder Ali created further troubles for the rulers of Hyderabad. चिनकिलिज खान की 1748 में मृत्यु हो गई। उन्हें दक्कन का सबसे सक्षम शासक, मोस्ट केपेबल रूलर माना जाता था। उन्होंने दक्कन में आसफ जाही राजवंश की स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद क्षेत्र में अराजकता, कन्फ्यूजन फैल गई और राज्य के सिंहासन के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया। इस समय तक ब्रिटिश और फ्रांसीसी जैसी विदेशी शक्तियां, फॉरेन पावर्स, अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही थी। मराठों का दक्कन की राजनीति में हस्तक्षेप और हैदर अली के तहत मैसूर का उभार हैदराबाद के शासकों के लिए और भी समस्याएं पैदा कर रहा था। After several wars of succession, Nizam Ali, the 4th son of the first Nizam, ascended the throne in 1763, 15 years after his father's death. He ruled for almost 40 years and protected the Deccan from the attacks of the Marathas and Tipu Sultan of Mysore. कई उत्तराधिकार युद्धों, wars of succession, के बाद निजाम अली, जो पहले निजाम के चौथे पुत्र थे, ने 1763 में अपने पिता की मृत्यु के 15 साल बाद थ्रोन पर चढ़ाई की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और डेक्कन को मराठास और मैसूर के टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर के हमलों से बचाया, प्रोटेक्टेड। Mysore was part of the Vijayanagar Empire. In the 18th century, it was ruled by Chikka Krishna Raj. But his 2 ministers, Nanjaraj and Devaraj, usurped power, reducing him to a mere puppet. Mysore got involved in a number of wars with neighboring states under Commander Hyder Ali. In 1761, after the death of Nanjaraj, he established his authority over the kingdom and became the Sultan. मैसूर पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। 18वीं सदी में इसे चिक्का कृष्णा राज ने शासित किया, लेकिन उनके 2 मंत्रियों नांजराज और देवराज ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिससे वह केवल एक कठपुतली पपेट बनकर रह गए। मैसूर ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कई युद्धों वॉर्स में हिस्सा लिया और हैदर अली
हैदर अली के नेतृत्व में यह संघर्ष बढ़ा। 1761 में नांजराज की मृत्यु के बाद हैदर अली ने राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और सुल्तान बन गए। He proved to be very capable ruler. He reorganized the Mysore army and trained it on European lines. Soon, Hyder Ali's powerful army made Mysore force to be reckoned with. He expanded the territory of Mysore, but he had to contend with the Marathas and the Nizam while expanding his kingdom in Deccan. He was succeeded by his son Tipu Sultan. हैदर अली एक बहुत सक्षम शासक, केपेबल रूलर साबित हुए। उन्होंने मैसूर की सेना, मैसूर आर्मी का पुनर्गठन किया और उसे यूरोपीय पद्धतियों, यूरोपियन लाइंस पर प्रशिक्षित किया। जल्द ही हैदर अली की शक्तिशाली सेना ने मैसूर को एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। उन्होंने मैसूर का विस्तार किया, लेकिन दक्कन में अपना साम्राज्य फैलाने के दौरान उन्हें मराठों और निजाम से संघर्ष करना पड़ा। हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने शासन किया। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 was a born fighter like his father. A visionary, he introduced many reforms to westernize his army and built a modern navy. He sent trade missions to many countries of West Asia and Europe. He introduced a uniform coinage system and a new calendar system. He undertook many reforms to improve the condition of the people and the development of the state. Tipu Sultan 1782 से 1799 अपने पिता की तरह एक स्वाभाविक योद्धा, बॉर्न फाइटर थे। एक दूरदर्शी शासक, विशनरी, उन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी पद्धतियों, वेस्टर्नाइज के अनुसार कई सुधार, रिफॉर्म्स किए और एक आधुनिक नौसेना, मॉडर्न नेवी भी बनाई। उन्होंने पश्चिमी एशिया और यूरोप के कई देशों में व्यापार मिशन, ट्रेड मिशंस भेजे। उन्होंने एक समान मुद्राप्ती प्रणाली, यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम और नया कैलेंडर प्रणाली, न्यू कैलेंडर सिस्टम भी शुरू किया। उन्होंने लोगों की स्थिति, कंडीशन ऑफ द पीपल में सुधार और राज्य के विकास, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट के लिए कई अन्य सुधार किए। His economic measures helped Mysore to make great progress. He died while fighting the Fourth Anglo-Mysore War in 1799. उनके आर्थिक उपायों, इकोनॉमिक मेजर्स ने मैसूर को महान प्रगति, ग्रेट प्रोग्रेस करने में मदद की। 1799 में चौथी एंग्लो-मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर के दौरान वे लड़ते हुए शहीद हो गए, died while fighting. Economic conditions. Agriculture was the main source of livelihood for the majority of the population, while land revenue was the main source of income of the state. In the absence of a uniform taxation system, the peasants were forced to pay heavy taxes. Even in natural calamity, they did not get any relief or clemency from the state. The methods of cultivation remained the same as they had been for centuries. Neither the state nor the peasants took any initiative to introduce agricultural innovations in some states like Bengal and Awadh. Progressive rulers introduced some measures to improve the condition of the peasantry. कृषि, agriculture, अधिकांश जनसंख्या, majority of the population, के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत, main source of livelihood, थी, जबकि भूमि राजस्व, land revenue, राज्य की आय का मुख्य स्रोत, main source of income, था। एक समान कर व्यवस्था,
यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम के अभाव में किसानों पीजेंट्स को भारी करों हेवी टैक्सेस का भुगतान करना पड़ता था। प्राकृतिक आपदाओं नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान भी उन्हें राज्य से कोई राहत या छूट रिलीफ और क्लेमेंसी नहीं मिलती थी। कृषि पद्धतियां मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन सदियों से वही बनी हुई थी। न तो राज्य और न ही किसान कृषि में नवाचार एग्रीकल्चरल इनोवेशंस लाने के लिए कोई पहल इनिशिएटिव लेते थे, लेकिन कुछ राज्यों जैसे बंगाल, बंगाल और अवध में प्रगतिशील शासकों प्रोग्रेसिव रूलर्स ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ उपाय मेजर्स शुरू किए थे। ट्रेड एंड कॉमर्स। Trade was an important economic activity in the 18th century. European traders established trading outposts along the eastern and western coasts of India. The Indian rulers did nothing to discourage the French and English traders who formed the bulk of this community, since foreign trade yielded rich revenues to the state. Cotton textiles, spices, raw silk and opium were the main items of export. 18वीं सदी में व्यापार ट्रेड एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। यूरोपीय व्यापारी यूरोपियन ट्रेडर्स भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट्स पर व्यापार केंद्र स्थापित ट्रेडिंग आउटपोस्ट्स कर चुके थे। भारतीय शासक इंडियन रूलर्स फ्रांसीसी, फ्रेंच और अंग्रेजी इंग्लिश व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के बजाय कोई विरोध नहीं करते थे, क्योंकि विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड से राज्य को अच्छा राजस्व रिच रेवेन्यूज प्राप्त होता था। सूती वस्त्र कॉटन टेक्सटाइल्स, मसाले, स्पाइसेस, कच्चा रेशम, रॉ सिल्क और अफीम ओपियम मुख्य निर्यात मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट थे। With the decline of the Mughal Empire, the centers of trade and industrial activity shifted to the new political centers. Meanwhile, the rural economy suffered due to frequent external interference. The advent of the British hastened this process and devastated the country's economy. मुगल साम्राज्य के पतन डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के साथ ही व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नए राजनीतिक केंद्रों न्यू पॉलिटिकल सेंटर्स की ओर स्थानांतरित शिफ्टेड हो गए। इस बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था रूरल इकोनॉमी पर बार बार बाहरी हस्तक्षेप एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का असर पड़ा। ब्रिटिश का आगमन एडवेंट इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया और देश की अर्थव्यवस्था कंट्रीज इकोनॉमी को नष्ट डेवास्टेटेड कर दिया।